तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Students, today we are going to discuss about the unit number 4, Hazrat Asma Razila Ta'ala Anha. First of all, I am going to give you some introduction about the Hazrat Asma Razila Ta'ala Anha. Hazrat Asma Razila Ta'ala Anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Razila Ta'ala Anha, had great love for Islam and the Rasul sallallahu alaihi wasallam. She left no stone unturned to serve and help the Rasul sallallahu alaihi wasallam. When he sallallahu alaihi wasallam migrated from Makkah to Medina, Hazrat Asma Razila Ta'ala Anha was very wise and daring. She faced Abu Jahl very courageously and wisely. When he came to her house in great anger, she Razila Ta'ala Anha was very kind-hearted and generous. When she inherited a garden, she sold it and distributed all the money among the poor and the needy persons. Hazrat Asma Razila Ta'ala Anha will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. She had resolute faith in Allah Almighty. Her life would always be a beacon of light for all of us. The theme of the lesson is to know and appreciate how Muslim women stood with integrity and valor for the cause of Islam. Not only did they help the cause, but they were also the role model for the entire Muslim Ummah. Most often, they were perfect examples of modesty, truthfulness, honesty, pity, bravery, and even generosity. Students, this was a brief introduction about the Hazrat Asma Razila Ta'ala Anha in this chapter. Now we are going to translate the chapter one by one paragraph. First paragraph 1. The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Razila Ta'ala Anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Razila Ta'ala Anhu, they got furious. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई। जब मक्का के मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदारों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी या साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत के बारे में पता चला तो वो गुस्से में आ गए। The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. इन्हें ढूंढने के लिए सरदार पहले से ज़्यादा पुरअज़म हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह मुर्दा या ज़िंदा गिरफ्तारी पर बड़े इनामात और कसीर रकूम बतौर इनाम की पेशकश की। Student, there is a question in the blog. Who were emigrants and where did they migrate to? मुहाजिरीन कौन थे और उन्होंने कहाँ पे हिजरत की? So the answer is the emigrants were the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. They migrated to Medina.
हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो उन्होंने हिजरत फरमाई थी और उन्होंने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी। There are some difficult words, pronunciation, meaning and synonym of the paragraph number 1. First one is companion. Companion. This one is the pronunciation of this letter. Meaning है साथी या सहाबा and the synonym is partner. Second one is migrated. Migrated. Meaning है हिजरत फरमाना और synonym है move. Tribe. Tribes, ये आप उनका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। एंड द मीनिंग इज़ कबाइल, ग्रुप ऑफ पीपल। फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स गुस्सा होना, गज़बनाक होना। एंड द सिनोनिम इज़ वायलेंट। डिटरमेंट, दिस वन इज़ प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब है अज़म करना, परपजिव। ह्यूज, बड़ा, मैसिव। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब होता है इनामात, प्राइज़। बाउंटीज़, बाउंटीज़ का मतलब है बदला या सिला और इसका सिनोनिम है अवार्ड। देयर आर सम वर्ड सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड इज़ कंपेनियन। सेंटेंस है शी विल बी अ गुड कंपेनियन फॉर यू। माइग्रेटेड, ही माइग्रेट्स फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान, यानी कि हिजरत फरमाना या मूव कर जाना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बन रहा है ही माइग्रेट्स फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान। एंड द थर्ड वन इज़ ट्राइब। ट्राइब का मतलब होता है कबाइल या कबीला। मेंबर्स ऑफ दैट ट्राइब सेटल्ड अलोंग द रिवर। किसी कबीले के लोग जो हैं वो दरिया के किनारे आकर सेटल हो गए। फ्यूरियस, गुस्सा करना, अली इज़ फ्यूरियस विद मी। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल वर्ड सेंटेंसेस आर टेकन फ्रॉम दीज डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सम आर गिवन and you should make other sentences about these words for your practice. Second paragraph, the preparation of this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हो. Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा rendered useful services in this regard. इस सफ़र के लिए तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर पे की गई। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सिलसिले में कारआमद खिदमात सर अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक with her own belt as nothing else could be found. For this service, she was given the title of ज़ातुन नताकीन by the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कुछ भी ना मिला तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना अपने कमरबंद से ऊँट की पुश्त पर बांध दिया। इस खिदमत की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़ातुन नताकीन का खिताब दिया। There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms about the paragraph number 2. First one is journey. Journey का मतलब होता है सफ़र करना, tour. Render. Rendered mean सर अंजाम देना, contribute करना. Services, खिदमात, facility, duty. Regard, एहतराम, respect. Title, खिताब, name. प्रिपेयर, तैयार करना, मेक रेडी। स्टूडेंट्स, इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपने स्पेलिंग्स भी याद करने हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन को अच्छे तरीके से देखना है, इनके मीनिंग्स को, सिनोनिम्स को। सिनोनिम्स इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं ताकि आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकें। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी आपको उतना ही समझ आएगी चैप्टर को पढ़ने में या अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर सेंटेंसेस to improve your self writing. First one is journey. She went on a long journey. वो एक लंबे सफ़र पर रवाना हुई। Rendered, rendered the virus rendered the computer useless. कर दिया यानी कि सरंजाम दे दिया, काम कर देना। Services, सर्विसेज होता है सहूलत या कोई खसूसी किस्म का प्रोटोकॉल। The officers enjoy special services. Regard, would you regard this as good? रिगार्ड का मतलब एहतराम है। सो पैराग्राफ नंबर 3, ड्यूरिंग द पेरिलियस
perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam. इस पुरखतर सफ़र के दौरान किसी के लिए भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक मुहैया करना बहुत मुश्किल था। ये इतनी हसास सूरत हाल थी कि ज़रा सी कोताही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क was nicely undertaken by Hazrat Asma रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत इस अजीम काम की ज़िम्मेदारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़े पुरखुलूस तरीके से कबूल की। Every night with the pack of food she would quietly venture towards the rugged mountain in which lay the cave of Thor. She took care of the minute details in accomplishing the task. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर रात अपनी जान ख़तरे में डालकर खाने का पैकेट लेकर खामोशी से उन दुश्वार गुजार पहाड़ों की तरफ रवाना हो जाती जिनमें गारे सोर वाक़ था। इस काम को सरअंजाम देने के लिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. यकीनन नज़र आ जाने के मुस्तकिल खौफ से उनके लिए रात के वक्त पथरीले रास्ते को अबूर करना किस कदर मुश्किल हो रहा होगा। There are some difficult words, their pronunciation, meanings and synonyms of the paragraph number 3. First one is perilous. Perilous का मतलब होता है ख़तरनाक, dangerous, delicate, नाजुक, ब्रेकेबल, ऐसी चीज़ जिसको तोड़ा जा सके, नाजुक। इंडेंजर्ड, ख़तरे में डालना, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ख़त्म हो जाने का जिसको डर हो। वेंचर, ख़तरात का सामना करना, वॉलंटियर। रग्ड, नाहमवार, रफ। अकम्पलिश, मुकम्मल करना, कंप्लीट। डिटेक्टेड, नज़र आ जाना, नोटिसेबल। There are some difficult words and their sentences. First one is perilous. The country roads are quite perilous. Delicate. Flowers are chosen for their delicate fragrance. Endangered. The giant panda is an endangered species. Students, ये जितने भी वर्ड सेंटेंसेस बनाए गए हैं ये आपकी सहूलत के लिए बनाए गए हैं ताकि आपको सेल्फ राइटिंग में आसानी हो। तो जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रह गए हैं उनकी ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने उन तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सेंटेंसेस खुद से तैयार करने हैं और कोशिश करनी है बनाने की। और जितने भी ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से याद करना है, इनकी प्रोनाउंसिएशन को, मीनिंग्स को और सिनोनिम्स को। इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स याद करने से आपकी वोकेबलरी जो है वो इंक्रीज़ होगी, जिससे आपको इंग्लिश को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट वन, पैराग्राफ नंबर 4. ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स द हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की रात को कफ़ार का कबायली सरदार अबू जहल बहुत तैश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ। देयर इज़ अ क्वेश्चन इन ब्लॉक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी? सो द आंसर इज़ इट मीन्स इन एन एक्सट्रीम एंगर। इसका मतलब है कि शदीद गुस्से में आ जाना। फिट ऑफ फ्यूरी का मतलब है। He began to knock at the door violently. उसने गुस्से में दरवाजे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू कर दी। हज़रत एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, he demanded, where is your father? She politely replied, how would I know? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातिब होते हुए उसने पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शाइस्तगी से जवाब दिया, मुझे कैसे मालूम होगा। द रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम
and courage of Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala anha, she didn't make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दानिशमंदी और जुर्रत को ज़ाहिर करता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ऐसा बयान नहीं दिया जिससे उसे कोई सुराग मिलता, बल्कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने महज जवाबन एक सवाल कर दिया जिसने अबू जहल को मुश्तइल कर दिया या गुस्सा दिला दिया। He slapped हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कान की बाली गिर गई, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साबित कदम रहीं और राज को अफशा ना किया या राज को बताया ना। Students, there is a question in the blog, why was Abu Jahl furious? अबू जहल जो था वो गुस्से में क्यों था? Abu Jahl got furious when Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala anha did not tell him anything about his father but posed a counter question. अबू जहल गुस्से में तब आया जब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके वालिद के बारे में अबू जहल को नहीं बताया, बल्कि दोबारा उल्टा एक सवाल उनके ऊपर दाग दिया, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया। Students, there are some difficult words, pronunciation, meaning, synonyms. First one is disbeliever. डिसबिलीवर का मतलब होता है काफिर, नॉन बिलीवर। डिमांड मुतालबा करना, रिक्वेस्ट। विजडम अक्लमंदी, इंटेलिजेंस। करेज हौसला, ब्रेवरी। क्ल्यू सुराग, हिंट। इन्फ्यूरिएटेड मुश्तइल हो जाना, एंगर गुस्से में आ जाना। देयर आर सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। डिसबिलीवर, द डिसबिलीवर हैज़ always turned his back. Next was is demand. The company increased production to meet demand. Wisdom, without wisdom, wealth is worthless. Now move on to the paragraph number 5. Her grandfather Hazrat Abu Kuhafa was a disbeliever at that time. He was very old and had become blind. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा इस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। वो बहुत बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे। उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, मेरा ख्याल है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तुम्हें और बच्चों को बेसरो सामान और बेबस छोड़कर सारी दौलत ले गया है। At this, she instantly ran to a corner of the home. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. उस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ौरन घर के एक कोने की तरफ भाग कर गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उन्हें उस जगह पर रख दिया जहाँ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद पैसे और जेवरात को रखा करते थे। She covered it with a piece of cloth. Come, grandfather, look, he has left all this for us. उन्होंने उसे एक कपड़े से ढांप दिया और कहा, आए दादा जान, देखें, वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was all alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हो had left all his wealth at home. उन्होंने कपड़े को छुआ और समझा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। उनकी तशवीश या उनकी जो परेशानी थी वो दूर हो गई और ये जानकर उन्हें इत्मीनान हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़कर गए हैं। There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym about the paragraph number 5. First one is wealth. Wealth का मतलब होता है दौलत, mean money. Instantly अचानक या फ़ौरन ही, immediately, pebbles कंकरियाँ, small stones, jewels
जवाहरात प्रीशियस स्टोन्स, एलिवेटेड कम करना, रिड्यूस, रिलीव्ड सुकून देना, सोफन. There are some sentences related to these difficult words. First one is wealth. So the sentence is, he has lost all his wealth. Instantly Ali turned towards Ahmad. Pebbles, they exploded into pebbles and dust. Paragraph number 6. Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha was amongst the early few who accepted Islam. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anhu and the step sister of Hazrat Aisha Siddiqa Radhiyallahu Ta'ala Anha. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन चंद अव्वलीन में से थी या उन चंद लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुतेली बहन थी. शी वॉज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. She died at the ripe old age of about 100 years. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा थी और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की बीवी थी. आपने तकरीबन 100 बरस की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha Radhiyallahu Ta'ala Anha, and his mother Hazrat Asma Radhiyallahu Ta'ala Anha was so generous that she told her inherited. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी वालदा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी को फ़याज़ और फ़राख दिल नहीं पाया. हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस कदर फ़याज़ थीं कि जब उन्हें अपनी बहन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद एक बाग विरसे में मिला तो उन्होंने उसे बेच दिया और तमाम पैसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिए. स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द ब्लॉग, व्हाट आर द अदर वर्ड यू कैन यूज़ फॉर द एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड वर्ड के लिए आप दूसरा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या आप दूसरे लफ्ज़ों में उसका मीनिंग सिनोनिम के तौर पर क्या यूज़ कर सकते हैं. We can use embraced for the word accepted. Accepted का मतलब भी कबूल करना होता है और embrace का मतलब भी कबूल करना होता है, तो हम embrace को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. There are some difficult words, their pronunciation, meaning and synonym about the paragraph number 6. First one is ripe age. Ripe age का मतलब होता है पुख्ता उम्र, बड़ी उम्र, very old age. Generous, generous का मतलब होता है सखी, free handed. Inherit, विरसा मिलना, receive. Needy, ज़रूरतमंद, poor. Doorstep, दहलीज, step outside the door. Give away, बांटना, donation करना. There are some difficult words and their sentences. First one is ripe age. From now on they will live to a ripe age. Generous, she has always been very generous to the poor. Inherit, she inherited her father's deep blue eyes. So students, ये आज का चैप्टर था. उम्मीद है आप सबको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी. आपके लिए बेटा होमवर्क किया है कि आपने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, मीनिंग, सिनोनिम, इनको अच्छे तरीके से याद करना है. इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपने स्पेलिंग्स भी अच्छे तरीके से याद करने हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बाद में. इनके प्रोनाउंसिएशन को पढ़ते हुए अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है. इन प्रोनाउंसिएशन वाली जो स्लाइड्स हैं इनको बार बार देखना है. कोई वर्ड पढ़ते हुए अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो, और आपने इनको सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से बनाना है और ख़ुद से ट्राई करनी है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप इन सेंटेंसेस को बना सकें ताकि आपकी सेल्फ राइटिंग इम्प्रूव हो. बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं. आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें. शुक्रिया.